learners, welcome back to my channel Fit the Lit, where we fit literature to its rightful standard. This session is a part of the series Sprint to Selection, where we are learning grammar topics in 15 minutes. Yes, we have already covered one topic, that is clauses, and today we are going to attempt the practice questions related to the topic. Although this series is designed to cater to the needs of KVS and NVS aspirants, but if you are a learner who is interested to practice your knowledge of clauses and its types, you are most welcome, because it is going to take only 15 minutes of your time to test your knowledge in this practice session. Without any further delay, let us begin. Sprint to selection. So let us start with the very first question. In the first question, you need to identify the type of clause. So sentence आपको दे रखा है, right? The sentence has been already given, and this portion of the sentence you need to identify कि what type of clause is this. What is the sentence? I know what he wants. और हमें what he wants को identify करना है कि कौन सा type का clause है. So if you remember from the concept video, हमने concept में cover किया था कि 3 question हमें पूछने होते हैं majorly, right? 3 question, क्योंकि तीनों हमें बताएंगे कि वो कौन से टाइप का क्लॉज है. व्हाट, विच वन, एंड थर्ड तो देयर वाज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो वो हमें याद ही नहीं करने थे. हमने सिर्फ 2 मेजरली याद करने थे, दैट इज नाउन एंड एडजेक्टिव, और बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे? एडवर्ब क्लॉजेस, राइट? ऑटोमेटिकली वो एडवर्ब क्लॉज में चले जाएंगे अगर हमारे ये 2 टाइप के नहीं निकले तो, राइट? तो आपको इसमें क्वेश्चन पूछना है, आई नो व्हाट. हमारे पास आंसर आया, क्या पता है? व्हाट ही वांट्स. तो ऑफ कोर्स हमारे पास आंसर आ गया. सो व्हाट क्लॉज इज दिस गोइंग टू बी? इट इज अ noun clause. So let us check whether we have identified it correctly. Yes, it is a noun clause. Let us move forward. The next question, again you need to identify the clause that is there. Again you need to identify the clause that is used. The boy who is standing there is my cousin. Now look at this particular part of the sentence, this particular clause. Who is standing there? अब what पे तो आंसर नहीं आएगा, तो try to understand कि which one पे आंसर आ रहा है, कि which one is my cousin. The boy who is standing there is my cousin. So of course this one is adjective clause. Noun clause नहीं होगा क्योंकि what पे तो आंसर आएगा ही नहीं. Adverb clause भी of course हमें थर्ड स्टेप पे जाना ही नहीं है. Yes, it is adjective clause. So as you can see, the correct answer is adjective clause. Let us move forward with the third question. Look at the sentence. She will join the company when she completes her degree. Now, if you look at this part of the sentence closely, when she completes her degree, ये आपको वैसे भी क्या सेंस दे रहा है कि वो क्या बता रहा है? ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ कोर्स कंडीशन बता रहा है, राइट? या टाइम बता रहा है, यू कैन से. तो कंडीशन या टाइम. अब जिनको एडवर्ब्स डिटेल में आते हैं उनको तो पहले ही पता चल गया होगा, बट हम लोग वही स्टेप्स यूज करते हैं, व्हाट एंड विच वन. तो व्हाट, शी विल जॉइन द कंपनी, व्हाट नहीं है हमारे पास आंसर. विच वन, अगेन आंसर नहीं है. तो हमारा ये ऑटोमेटिकली कौन सा हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, राइट? तो ये हमारा, मैंने पहले बताया था कि ये कंडीशन या टाइम बता रहा है, तो यहां से ही हमें समझ जाना चाहिए था कि कौन सा है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम.
So of course the correct answer is adverb clause of time. अब ये आपको समझना चाहिए कि ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ये हमें टाइम या कंडीशन ही तो बता रहा है, तो जो फंक्शन उसका है उस सेंटेंस में वो ही वो टाइप बनता है जाके। वो जो हमारे दो क्वेश्चन है वो तो हमें याद रखने ही है, वो तो हमारे रेक्टिफिकेशन के लिए या यू कैन से करेक्शन के लिए है कि अगर हम कहीं ना कहीं डाउट में तो हम वो यूज करें। बट हमें मेजरली तो यही देखना है कि सेंटेंस में वो पर्टिकुलर पार्ट या फिर वो पर्टिकुलर क्लॉज क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दिख गया था कि एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी एडवर्ब क्लॉज। बाकी हमने हु एंड विच वन भी करके, व्हाट एंड विच वन भी करके देख लिया, व्हाट एंड विच वन से भी आंसर नहीं आया, तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी एडवर्ब क्लॉज। Let us move on to the next question, that is question number 4. Which sentence contains a noun clause? तो identify कि कौन से sentence में noun clause है. You can write the correct answer as per your understanding in the comment box. I met a man who was very rich. She cried because she was hurt. I believe that he is honest. The girl standing there is my sister. Now look at all these 4 sentences and try to understand कि कौन सा हमारा noun clause है. Right? I met a man who was very rich. ये part of the sentence किसको modify कर रहा है? Man को. तो ये हमारा क्या है? Adjective clause. She cried because she was hurt. ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? रीजन, रीजन कि वो क्यों रोई, राइट? देन आई बिलीव दैट ही इज ऑनेस्ट। नाउ इफ यू लुक एट दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट के बाद से हमारा क्लॉज शुरू हो जाता है, राइट? तो दैट के बाद से जब हमारा क्लॉज शुरू होता है और हम देखते हैं इस पार्ट को, तो ये हमारा क्या वर्क कर रहा है? एज अ ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट। तो वो जब ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो हमारा वो क्या हो गया? नाउन क्लॉज। तो हमारा आंसर आ गया नाउन क्लॉज। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर भी है, करेक्ट आंसर। द गर्ल स्टैंडिंग देयर इज माई सिस्टर। नाउ लुक एट दिस पार्ट, ये अगेन मॉडिफाई कर रहा है गर्ल को, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। So first is adjective, second is adverb, fourth is also adjective, third one is the noun clause. So the correct answer is C. This is going to be your noun clause. So yes, this one is the correct answer. Now if you try to if you try to cross check your answer, you will identify or you will try to replace this particular part, that he is honest, with what? So I believe what? That he is honest. तो वो वाली हमारी ट्रिक भी काम कर रही है जो हमारी क्वेश्चन ट्रिक थी। नाउन क्लॉज के लिए what, नाउन क्लॉज के लिए what, एंड एडजेक्टिव क्लॉज के लिए which one। तो यहां पे भी देखिए, यहां पे भी काम करेगी which one, which one। Okay, let us move forward। Now as you see the background has changed, यानी कि difficulty level of the questions has increased। तो हमने difficulty level अब हम लोग advanced पे आ गए हैं, right? So this is going to be slightly difficult as compared to the previous questions। Let us try to attempt। Read the question and try to answer। Identify the type of clause। He works hard so that he may succeed। He works hard so that he may succeed। अब ये जो part of the sentence है, it is giving you the reason that why he works hard। तो ये तो हमें पता ही चल गया कि ये क्या है,
एडवर्ब है, ये तो सीधा सीधा ही पता चल गया। नाउन भी नहीं है क्योंकि हमारा व्हाट की तरफ आंसर नहीं आ रहा, विच वन की तरफ नहीं आंसर आ रहा, तो हमारा एडजेक्टिव भी नहीं है। तो हमारा ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस और रीजन। So yes, it is adverb clause of purpose. As you can see, we have got the correct answer. I am confident that he will succeed. Now look at this particular question, that. This is a tricky connector. ये जो हमारा कनेक्टर जब भी that यूज होता है ना, तो ये ट्रिकी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं एग्जैक्टली पता चलता मॉडिफायर से। वो जो लिस्ट ऑफ मॉडिफायर आप लर्न करके बैठे होते हैं ना, कि हु, हुम, विच आया तो एडजेक्टिव हो गया, दैट, इफ, वेदर आया तो नाउन हो गया, और बाकी सब आया तो एडवर्ब। वैसा कुछ भी नहीं यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे आपको जो काम करेगा वो आपकी नॉलेज ही काम करेगी। एंड व्हाट इज दैट, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द फंक्शन, कि फंक्शन क्या है उस पर्टिकुलर पार्ट का उस सेंटेंस में। और अगर फंक्शन से नहीं आता तो वही आप दो क्वेश्चन पूछे, हु एंड विच वन। All right, चलो। I am confident that he will succeed. Now that he will succeed को हमें किससे रिप्लेस करना है? I am confident of what? आंसर आ रहा है that he will succeed, आ गया आंसर सीधा सीधा। तो ये क्या है, हमारा नाउन क्लॉज है। अब ये तो मैंने यहां से करके दिखा दिया। अब फंक्शन में देखें तो आई एम कॉन्फिडेंट किस चीज के लिए, किस चीज के लिए कॉन्फिडेंट? तो इट इज वर्किंग एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, राइट? इट इज वर्किंग एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। अब इतना नहीं पता होता बच्चों को कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो इतने डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट आस्क व्हिच एंड व्हाट एंड व्हिच वन, उसी से आपके पास आंसर आ गया, नाउन क्लॉज। अगर आपको नॉलेज है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो आप वैसे ही देख के पहचान जाएंगे, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये एज कॉम्प्लीमेंट वर्क कर रहा है। ओके, सो दिस वन इज नाउन क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है क्योंकि इट इज नॉट मॉडिफाइंग द नाउन। नाउन को तो कहीं से भी, क्योंकि नाउन क्या है यहाँ पे, आई है, तो आई को तो वो कहीं से भी नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, तो बिल्कुल एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। एडवर्ब क्लॉज नहीं है क्योंकि वो एडिशन नहीं कर रहा है किसी चीज में, किसी चीज को एडिशन नहीं कर रहा है, राइट? ना वो हमें एडिशन कर रहा है एडवर्ब की, ना वो हमें एडजेक्टिव के बारे में और कुछ बता रहा है, ना ही वो एडवर्ब के बारे में और कुछ बता रहा है। तो ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू बी एडवर्ब क्लॉज। और फ्रेज भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि फाइनाइट वर्ब आ गया हमारा, राइट? सो ये हमारा फ्रेज भी नहीं है। So the answer is noun clause. Next question. Again, look at this particular question. अब तो ये केक वॉक हो जाने चाहिए क्वेश्चंस, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं अब तो। मतलब इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, आपको दो ही चीजें देखनी है, फंक्शन एंड दूसरा क्वेश्चन पूछना है, व्हाट एंड विच वन, बस, और कुछ नहीं है। He stayed at home because he was ill. तो पहले ही फंक्शन पता चल गया कि वो रीजन दे रहा है। अब वो रीजन दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो सीधा एडवर्ब ही है, राइट? एडवर्ब अगर आपको फंक्शन से भी नहीं पता लग रहा है कि वो एडवर्ब है, तो हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट से जाते हैं, हु एंड अगेन विच वन, सॉरी, व्हाट एंड विच वन। तो व्हाट एंड विच वन से भी इफ यू गो, आई स्टेड एट होम, व्हाट नहीं आंसर आ रहा, विच वन नहीं आंसर आ रहा, तो यानी कि हमारा ले दे के क्या बचा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, राइट? दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउन क्लॉज भी नहीं है, एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है, फ्रेज भी नहीं है। फ्रेज क्यों नहीं है? बिकॉज अगेन वर्ज आ गया हमारे पास, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। लेट अस मूव ऑन टू the next question, and that is the last one of this practice session. I know what he wants. I know what he wants. Now this particular question, again look at the highlighted portion, what he wants. If you can answer the question what, then it is going to be a noun clause.
तो स्टेप 1 में ही आपको पता चल जाएगा कि इट इज नाउन क्लॉज. आई नो व्हाट, कि उसे क्या चाहिए. आंसर मिल गया, व्हाट ही वांट्स. तो हमारा ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज नहीं है, एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है, फ्रेज भी नहीं है, क्योंकि वांट्स जो है हमारा फाइनाइट वर्ब आ गया. राइट, सो दिस इज इट एंड इट इज गोइंग टू बी नाउन क्लॉज. तो स्टेप 1 में ही आपने पकड़ लिया कि इट इज नाउन क्लॉज. So as I said, it is a noun clause. So the topic becomes really easy if you know the core concept. अगर आपको core concept ही नहीं पता है, तो of course there are going to be mistakes. And इस बार mistakes का कोई scope ही नहीं है. केवी ने कोई scope दिया ही नहीं है because they have given you negative marking. तो wrong attempt के भी आपके marks कटेंगे. अब ऐसा नहीं है कि आप सारे attempt करके आ जाएंगे and then there will be no deduction. Wrong attempt के marks कटेंगे. So you cannot afford the deduction of marks. As I said, हमें एकदम core concept समझना है and then we need to attempt the paper or the questions that come in the examination. If you have not yet gone through the video of the core concept of clauses, you can always find the link in my channel, hit the link and go forward with the same. This brings us to the end of the session where we try to practice our understanding of the concept of clauses. If you have scored 7 and above, then it is going to be a really easy task for you to attempt the clauses questions. If not, go through my video of the core concept of clauses and its types and reattempt these practice questions. See you all in the next video.